हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स थे। सो फर्स्ट नाउ लुक एट्स पार्ट ए। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस ए बी एंड सी। तो आपके पास 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं ए बी एंड सी। So let's say this is box A, this is box B, and all 3 boxes are identical at the same temperature. They all have same temperature T, and they have gases of equal number of classical particle. Let's say this is your box A, जिसके अंदर आपके पास classical particles हैं, classical particles. बॉक्स बी के अंदर आपके पास बोसॉन्स हैं, एंड बॉक्स सी के अंदर आपके पास फर्मियोन्स हैं, and they are all are in equal numbers. Which gas will exert the greatest pressure and which gas will exert the least pressure and why? So to understand this, we have to understand first of all कि हमारे पास classical particles क्या होते हैं, bosons क्या होते हैं, and fermions क्या होते हैं. So मैं यहाँ पर लिखता हूँ classical particles, इनकी properties जान लेते हैं एक बार. So classical particles यहाँ पर हम लिखते हैं boson, एंड देन फिर हम देखेंगे फर्मियोन के लिए. तो आपके पास जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. सो दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. Distinguishable particle. So there is no restriction on the state occupation. You can put as many classical particles in the ground state, so they do not obey, don't follow. You can write Pauli exclusion principle. So you can put as many classical particles in the ground state as you want. Okay? Now let's compare bosons. Bosons are indistinguishable particle. Indistinguishable particle. And similarly, they do not follow Pauli exclusion principle. But fermions are indistinguishable. ये indistinguishable होते हैं, लेकिन ये फॉलो करते हैं किसको? Pauli exclusion principle को. So you can write they follow Pauli exclusion principle. ठीक है. So they follow Pauli exclusion principle. It means for fermions you can only put 2 fermions in each state. So you have to put in different number of level. आपका order रहेगा higher energy की तरफ. आपको बहुत सारे फर्मियोन्स डिफरेंट लेवल्स में प्लेस करने पड़ेंगे. ठीक है. लेकिन क्लासिकल पार्टिकल और बोसोन्स के अंदर यू कैन पुट ऑल दोज पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट. सो प्रेशर किस में ज्यादा होगा? यहाँ पर डीजेनरेट प्रेशर होता है ड्यू टू लेवल्स. आपके पास फर्मियोन्स आर फोर्स टू into higher and higher energy states due to Pauli exclusion principle, and they possess a large zero point energy and exert a strong degenerate pressure. So you have to write this point. ठीक है, जो मैंने अभी डिक्टेट किया आपको, that fermions are forced into higher energy states with due to Pauli exclusion principle, and they possess large zero point energy and they exert a strong degeneracy pressure. तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने में शॉर्ट में लिख रहा हूं. फॉर फर्मियोन्स आप इसके रीजन क्या होगा? ड्यू टू लार्ज जीरो पॉइंट एनर्जी, लार्ज जीरो पॉइंट एनर्जी. एंड दूसरा रीजन क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिजेनरेट प्रेशर. स्ट्रॉन्ग degenerate pressure. So out of classical particle, bosons and fermions, fermions will exert the greatest pressure. ठीक है. Now let's move on to next part. So this was question number B of question number 1. Two isolated systems have thermodynamical probability 2 by 3 e power 10, 3 by 2 e power 10. Calculate the total thermodynamical probability. And
of the combination of these system and also calculate the entropy. So आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी सिग्मा टोटल ओमेगा टोटल that will be the multiplicative of independent system. So multiplicative probabilities of system 1 and system 2. So 2 by 3 multiplied by 3 by 2 into e raised to power 10 then e raised to power 10. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 20. दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी. यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी. एंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है? एंट्रोपी इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा. के बी एल एन ओमेगा. सो यू हैव टू टेक log natural of this quantity kb log natural exponential 20. सो log natural and exponential ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा? सिंपली एंट्रोपी, योर एंट्रोपी S will be simply 20 times kb, where kb is your Boltzmann constant. Fine. So this will be the total entropy. Fine. So easy था ये क्वेश्चन. Now let's move on to next part. Question number 1 part C. For a system of n atoms, energy of each atom is given by 1 by 2m p square x p square y half m omega square x square y square plus alpha xy, where m omega alpha are constant. Using equipartition theorem, find the average energy of this system. So equipartition theorem यूज करने से पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ x एंड y. Why? बिकॉज इक्विपार्टीशन थ्योरम में हमें क्या होता है, ईच quadratic term in x and y gives an 1 degree of freedom half kbt एनर्जी. ठीक है. सो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं. एंड देन ये किसके लिए है? सिंगल पार्टिकल के लिए है, ईच एटम के लिए. पहले ई निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एन एटम्स के लिए ई निकालेंगे एंड देन उसको इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज करके एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो देखो यहां पर एक्स वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले. एक्स टर्म्स, तो आपके पास देखो एक टर्म है आपके पास हाफ एम. यहां पर देखते ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है पी में, तो हम यहां से लेते हैं हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से जब आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 अल्फा हो जाएगा ये. सो इट विल बिकम 2 अल्फा डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. तो इसको ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं ए प्लस बी फॉर्म का. तो ए मीन्स एक्स प्लस बी, बी आप यहाँ पे एज्यूम करो अल्फा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर. तो इसका हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस करता हूं मैं, यहाँ पे देखना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक टर्म ऐड कर रहा हूं मैं, देखना अल्फा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. एंड इसी टर्म को मैं माइनस कर देता हूँ. सो अल्फा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर. सो ये मैंने कैसे किया, देखो आपके पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 2a इंटू बी, ए स्क्वायर ऑलरेडी है 2ab, तो मैंने यहाँ से b आइडेंटिफाई कर लिया अपना अल्फा अपॉन एम ओमेगा. तो मैंने उसका स्क्वायर ऐड कर दिया एंड स्क्वायर माइनस कर दिया. तो इससे होगा क्या, आपके पास ये उसकी फॉर्म में आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में. डेट इज, इसको मैं अंदर लिखूंगा एक्स प्लस अल्फा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा माइनस ऑफ दिस टर्म दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो अभी क्या करते हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर
माइनस ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। एक m ओमेगा स्क्वायर बाहर है, एक m ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया है किसके लिए, x वाली टर्म के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे y में भी आपके पास सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अल्फा वाई। तो सेम टर्म विल बी देयर फॉर अल्फा। सिमिलरली फॉर y आपके पास जो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, यही सेम टर्म आएगी, लेकिन जहां पे x है वहां पे आप y पुट कर दोगे। सो y प्लस अल्फा डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। फाइन, दिस इज फॉर y। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं एंड अपना एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। सो एनर्जी ऑफ वन एटम दैट इज E will be equal to p square x divided by 2m plus p square divided by p square y divided by 2m। अब x वाली टर्म लिखते हैं, x वाला ये आया था हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू x प्लस अल्फा डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर, देन माइनस आपके पास फिर y वाली टर्म लिख लेते हैं पहले। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस अल्फा डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर है माइनस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये दोनों टर्म ऐड होके क्या देंगे आपको, माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आई वन एटम की। दिस इज फॉर वन एटम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, नाउ वी विल राइट। इक्विपार्टीशन की थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेना ध्यान से। सो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, दैट एवरी इंडिपेंडेंट quadratic degree of freedom, quadratic degree of freedom, either position or momentum, sorry, position and momentum, so p and x contribute half kbt, contribute half kbt to the average thermal energy per particle. This is per particle. So this is your equipartition theorem. So the average energy, अब हम क्या लिखेंगे, average energy, average energy of one atom will be हाफ केबीटी, यहां से आएगा हाफ केबीटी इस टर्म से आएगा एंड हाफ केबीटी इस टर्म से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हाफ केबीटी माइनस दिस कांस्टेंट टर्म दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर। सो आपके पास एवरेज एनर्जी ऑफ वन एटम कितनी आई, 2 केबीटी माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय m omega square. For n atoms, your average energy will be E, that will be n multiplied by average energy of one atom. So इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, it will become 2n kbt minus n alpha square divided by m omega square. Okay, so this is your final answer. Average energy for n atoms. ठीक है, क्लियर है, समझ आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। व्हाई आर इलेक्ट्रॉन्स
not ejected out spontaneously from a metal in spite of having tremendous zero point energy. तो ये बात तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर वो अपने आप बाहर नहीं आते हैं जब तक कि हम उसके ऊपर एक लाइट शाइन ना करें जिसकी जो मतलब एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। लेकिन ऐसे उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन में उसका रीजन पूछा है कि वाई स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो नोट कर सकते हो या इसको जस्ट समझ लो, क्योंकि लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अननेसेसरी। एग्जाम टाइम पे वीडियो जितनी शॉर्ट हो, जितने जल्दी आपको कॉन्सेप्ट मैं बता सकूं, आई विल ट्राई। सो इसके अंदर क्या होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फील्ड एनर्जी स्टेट दैट इज योर फर्मी लेवल, फर्मी लेवल के बीच में, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। The energy difference between highest occupied state, that is your Fermi level, and the energy required to escape the metal surface, that difference in energy is known as work function energy. Because the barrier is significantly higher. अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक पोटेंशियल बैरियर होता है, दैट पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू पॉजिटिव आयंस। हमारे पास जो पॉजिटिव लैटिस आयंस होते हैं मेटल के, उसके कारण हमारे पास एक पॉजिटिव बैरियर बन जाता है, and that barrier is significantly higher than your Fermi energy. So the zero point pressure is effectively countered by this work function, this barrier. Okay, so the electrons get trapped inside unless external energy like a photon or heat is supplied. समझ आया कि आपके पास फर्स्ट चीज आपको मतलब क्या लिख के आना है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape the metal surface is called work function, because there is some potential barrier due to positive ions of lattice. Okay, so this barrier is significantly greater than your Fermi energy. So electrons are held inside, electrons are trapped inside metal, they cannot spontaneously come out. ठीक है, तो इसको अच्छे से सेंटेंस बना के लिखाना, अराउंड 4-5 मार्क्स में आता है, तो एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंस आपको लिख के आना। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ई, आई थिंक दिस इज लास्ट पार्ट। हाउ इज द फर्मी गैस डिफरेंट फ्रॉम अ बोस गैस एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन। तो दो तरह की गैस है हमारे पास, एक है बोस गैस एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन, एंड एक आपके पास है फर्मी गैस at T equals to 0 Kelvin. Fermi gas follows Fermi-Dirac statistics. Bose-Einstein gas follows Bose-Einstein statistics. ठीक है, so all bosons fall down to lowest energy state. You can write all bosons falls down to lowest energy state because there is no restriction due to Pauli exclusion principle. So the all bosons fall down to lowest energy state, and this phenomena is known as Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation. If we talk about Fermi gas follows Fermi-Dirac statistics, and fermions are governed by Pauli exclusion principle. So at T is equals to 0 Kelvin, they fill every available energy from ground state to upper levels until all particles are accommodated. So you can write that fermions follow Pauli exclusion principle, and they occupy every available energy state from ground state to higher available energy states until they are accommodated, and the highest occupied level is known as your Fermi level.
फर्मी लेवल क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, इस लेवल को बोलते हैं, इसकी एनर्जी होती है ई एफ। ठीक है, सो दिस वाज योर पार्ट ई। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, partition function is given by z summation over I gi exponential minus beta ei, where beta is 1 by kbt. Prove that mean energy is minus 1 over z del z by del beta. So you have to prove that mean energy is this much. So first of all, हमारे पास जो mean energy होगी E, that will be the weighted factor summation over small ei's multiplied by the weighted factor of probability pi। ठीक है, pi कैसे लिखेंगे हम? probability of ith state, that will be first of all summation over all ei's, and then probability कैसे लिखेंगे? your partition function for ith state, that is gi exponential minus beta ei divide by total partition function, that is z। ठीक है, so this is your mean energy, probability है ये। ठीक है, partition function for ith state divide by total partition function। ठीक है, so this is mean energy। so now जो हमारा z है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। so z will be equal to summation over I gi exponential minus beta ei। so let's differentiate z with respect to beta। so del z by del beta कितना होगा आपके पास? जब आप gi तो कांस्टेंट है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल आएगा, लेकिन जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास माइनस बीटा, सॉरी बीटा के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस ई आई बाहर आएगा। सो आपके पास आएगा डिफरेंशिएट करके ई आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके। सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, जो आपके पास ये वैल्यू है न्यूमरेटर, इसका इसका जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस डेल जेड बाय डेल बीटा। सो योर एवरेज एनर्जी विल बिकम, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, सो माइनस 1 बाय, ये z लिख देते हैं पहले, एंड देन डेल z बाय डेल बीटा। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, दैट द एवरेज एनर्जी इज 1 बाय z and del z by del beta। Now let's prove that the mean pressure is given by 1 over beta z del z by del v at constant temperature and n। so next पेज पर करते हैं इसे। mean pressure, we have to find mean pressure। so from thermodynamics we know that the change in work done will be pressure multiplied by change in volume, and the change in energy level due to volume change is given by d of ei exact differential of ei change in energy level will be partial differentiation over volume v multiplied by dv। ठीक है, this is change in energy level due to volume change, and the macroscopic pressure p bar is given by the ensemble average of macroscopic pressure states। जितनी भी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्रेशर स्टेट्स हैं, उनका ensemble एवरेज। तो ensemble एवरेज आप कैसे लिखोगे? समेशन ओवर आई पी आई इंटू माइनस डेल ई आई बाय डेल वी। ठीक है, सो पी आई प्रेशर ऑफ आई स्टेट आप कैसे लिखोगे? समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाय टोटल पार्टीशन फंक्शन जेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस डेल ई आई बाय डेल वी।
So now let's differentiate our partition function z with respect to v. Okay, so differentiating z with respect to volume v. So del z by del v at constant t. So आपके पास सेम आएगा पहले तो जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। अब आप इसके अंदर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो फर्स्ट आपके पास माइनस बीटा आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि। देन आप लिखोगे डेल ऑफ ई आई डिवाइड बाय डेल वी। तो आप एक काम करो, इस बीटा को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। सो 1/बीटा del z over del v at constant t will be equal to summation over I g I exponential minus beta e I into minus del e I divided by del of v। तो इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है अपनी मीन प्रेशर की इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इस z को छोड़ के। तो आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करोगे। इसकी वैल्यू आपके पास आई है 1/बीटा डेल जेड बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी मल्टीप्लायर बाय जेड। तो बीटा के साथ जेड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहीं पर लिख लो कि आपका जो प्रेशर है पी, यहां से मीन प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/बीटा टाइम्स जेड एंड देन डेल जेड ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस इज अ मीन प्रेशर। ये आपको प्रूफ है, ठीक है। अब थर्ड चीज हमें प्रूफ करनी है कि एंट्रोपी, कि एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, के बी टाइम्स एल एन जेड प्लस मीन एनर्जी डिवाइड बाय टी। तो आपके पास एक रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। सो इन पार्ट सी यू हैव टू प्रूव दैट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू के बी एल एन जेड प्लस ई बार डिवाइड बाय टी। सो आपके पास एक रिलेशन होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ का रिलेशन क्या होता है? यू माइनस टी एस, जहां पर यू क्या होता है आपकी इंटरनल एनर्जी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी। तो दिस इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी एफ। एक आपके पास जहां पर इंटरनल एनर्जी यू इज नथिंग बट योर मीन एनर्जी, ठीक है। तो यू की जगह पे आप मीन एनर्जी भी लिख सकते हो। एक आपके पास रिलेशन होता है एफ का, F is equals to minus KBT ln z। तो इस इक्वेशन में हम F की वैल्यू माइनस KBT ln z रखेंगे एंड U को E बार पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा देखो, F will be equals to minus KBT ln z is equal to E बार माइनस TS। तो TS को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो TS will be equal to KBT ln z प्लस ई बार। टी को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो यहां पर तो टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी एंट्रोपी कितनी आएगी? के बी टाइम्स एल एन जेड प्लस ई बार बाय टी। एंड यही आपको एंट्रोपी का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूफ करो। सो क्वेश्चन इजी है, जस्ट आपको दो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस टी एस, जहां पर यू आपकी क्या होती है, मीन एनर्जी, एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के बी एल एन जेड। दोनों की हेल्प से हम ये रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द रीजन इन एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर दैट इज -100 केल्विन एंड +100 केल्विन फॉर अ सिस्टम विद फाइनाइट मैक्सिमम एनर्जी विच ऑफ द टू इज वाटर, ठीक है। सो आपके पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है
सॉरी, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है थर्मोडायनेमिक? दैट रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर इज rate of change of entropy with respect to energy at constant volume and constant n. So this relation is known as, इस रिलेशन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जहां पर 1/t क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वेयर 1/t रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ ds बाय, मतलब एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी कर्व। ओके सो, इफ यू प्लॉट एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी तो आपके पास कैसा दिखेगा, देखो। तो यहां पर आप प्लॉट करोगे एंट्रोपी एंड यहां पर आप प्लॉट करोगे एनर्जी। सो इट विल लुक लाइक समथिंग, for a positive slope 1/t, that is t equals to 100 Kelvin, this slope will increase, and after reaching a certain maximum value, when t tends to minus 100, so the slope will become negative and the entropy will start decreasing on increasing energy. So this is for t equals to, you can write, this is for t equals to plus 100 Kelvin after reaching maximum value, and it will start decreasing with t equals to minus 100 Kelvin. ठीक, सो हमें बताना विच ऑफ टू इज हॉटर। सो हीट फ्लो का एक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी विद एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। तो जिस तरफ एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी वो आपकी बॉडी कोल्डर होगी, एंड जिस तरफ आपकी एंट्रोपी कम होगी वो बॉडी आपकी हॉटर होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्मोडायनेमिकल हीट फ्लो, आपके पास कौन सी बॉडी इनमें से हॉटर होगी एट टी इक्वल्स टू 100 केल्विन, टी इक्वल्स टू माइनस 100 केल्विन विल बी हॉटर। ठीक है, क्योंकि इसकी एंट्रोपी क्या होती है, आपके पास कम होती है। ठीक है, एंट्रोपी कम होती है तो इसकी एनर्जी मतलब हॉटर होगा ये। ठीक है, सो ये आपको प्रूव करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। हमने इस क्वेश्चन में दो बड़े क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर 5 पार्ट थे, एंड देन वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच एवरीवन, एंड मेरे अंदर थोड़ी और मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।